بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں حاضر ہوئی ہوں ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ۔ ہم ناول پڑھ رہے تھے لال حویلی۔ آگے بڑھتے ہیں ناول کی طرف۔ ہیئر وی گو۔ کچھ دیر پہلے ہی سحر نے اپنے تمام جملہ حقوق سالار شاہ کے نام کیے تھے۔ نکاح سادگی سے لاؤنج میں ہی طے پایا تھا۔ سحر نے ہلکے سے کام والا مہروش پاؤں تک جاتا فراک پہنا اور سر پر بھی سادگی سے دوپٹہ اوڑھ رکھا تھا۔ میکم کے نام پر اس کا ارادہ کچھ کرنے کا نہیں تھا، مگر نور اور نادیہ شاہ نے کہا تھا بے شک مہمان کم آ رہے ہیں مگر دیکھنے والے کچھ غلط نہ سوچ لیں، اسی لیے اس نے ہلکی سی پیچ لپسٹک اور مسکارا ہی لگایا تھا بس۔ وہ سادگی میں بھی غضب ڈھا رہی تھی، مگر سالار شاہ نے تو ایک کے بعد دوسری نظر بھی اس پر ڈالنی ضروری نہیں سمجھی تھی۔ جب ان دونوں کے نکاح کی بات اقرا شاہ کو پتہ چلی تو وہ بہت مایوس ہوئی تھی۔ وہ حویلی میں ناراض سی ہی آئی تھی کہ انہوں نے ہمیشہ سے ہی سحر کو افراہیم کے لیے سوچ رکھا تھا۔ ان کی خواہش جب سالار کو پتہ چلی تو اسے وہ دن یاد آیا تھا جب افراہیم نے سحر سے بدتمیزی کی تھی۔ اس کا خون کھول اٹھا تھا کہ اگر سحر کا رشتہ اس سے نہ ہوتا تو یقیناً اس کے آغا سے زبردستی بھی سحر کو افراہیم کو ہی سونپتے۔ آخر اکلوتی بیٹی کا اکلوتا بیٹا تھا۔ بے شک سالار کو سحرا بالکل بھی اچھی لگ رہی تھی، مگر تھی تو اس کے خاندان کی عزت نہ۔ بے شک وہ خود اسے زندہ ہی جلا دے، کسی اور کو کوئی حق نہیں دیتا وہ اس کی بیوی کو دیکھے بھی صحیح۔ اور افراہیم نے جو کچھ کیا تھا وہ تو پھر بدتمیزی کی آخری حد تھی۔ سالار جانتا تھا سحر معصوم ہے، اسی لیے اس نے تب سحر کو کچھ نہیں کہا تھا، مگر اب جانے کیوں اسے سحر پر بھی غصہ آ رہا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ کہتا تھا کہ باہر کے لوگوں سے ان کے گھر کی عورتیں پردہ کریں۔ وہ کرتی تو تھی مگر اقرا شاہ کے شوہر اور بیٹے سے نہیں کرتی تھی، وہ بھی صرف اور صرف اگسائی کی وجہ سے، کیونکہ انہیں یہ منظور نہیں تھا کہ ان کے نواسے کو غیروں جیسا سمجھا جائے۔ افراہیم تو آج غم و غصے کے باعث آیا ہی نہیں تھا۔ اقرا شاہ اپنے شوہر کے ساتھ آئی تھی اور اب ان کے شوہر نکاح ہوتے ہی جا چکے تھے۔ وہ بھی منہ پھیلا کر ایک طرف بیٹھی تھی، نہ کسی سے بات کر رہی تھی اور نہ کسی رسم میں شامل ہو رہی تھی۔ ہانیہ کو امان اٹھا کر نیچے لایا اور اب وہ اسی کے آسرے صوفے پر بیٹھی تھی۔ سحر اور سالار کو ایک صوفے پر ساتھ بٹھایا گیا تھا۔ اس وقت دونوں کے تاثرات میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ سالار بیزاری سے بیٹھا تھا اور کب یہ بتو کی رسمیں ختم ہو اور وہ یہاں سے جائے، جبکہ سحر مشکل سے یہ آنسو باہر آنے سے روک رہی تھی۔ وہ ہرگز سالار شاہ کے ساتھ لاہور نہیں جانا چاہتی تھی، مگر ہائے رے قسمت، اسے جانا تو تھا ہی۔ رخصتی کا وقت آیا تو سحر کا ایک آنسو بھی نہیں گرا۔ سبھی خوش ہونے کی بجائے پریشان ہوئے تھے کہ وہ کیوں نہیں رو رہی۔ وہ لوگ یہ نہیں چاہتے تھے کہ سحر نہ روئے اور خود کو پتھر دل بنا لے۔ وہ تو چاہتے تھے بے شک وہ رو لے مگر اپنا غصہ غم تو نکال لے۔ سحر سے سب ہی ملے تھے۔ مراد شاہ بھی واپس آ چکے تھے تو انہوں نے بھی اسے بہت پیار کیا تھا۔ سالار کو اس وقت منت یاد آئی تھی کہ جب اس کی رخصتی ہوئی تھی تو وہ کس طرح روتی تھی، کیسے وہ مراد شاہ کو جگڑ گئی تھی اور وہ اس کے ساتھ آنے سے بار بار انکاری تھی اور رو رہی تھی، مگر وہ اسے لے کر ہی گیا تھا۔ کاش وہ اسے اپنے ساتھ لے کر نہ گیا ہوتا۔ کاش ہمیشہ کاش ہی رہ جاتا ہے۔ سحر آ کر ہانیہ سے بھی ملی تو اس نے اس کے ماتھے پر پیار کرتے بہت سی دعائیں دی تھی۔ وہ سمجھ سکتی تھی سحر کی حالت، مگر کیا کر سکتی تھی، اب تک سب کچھ ہو چکا تھا۔ پھر سب کی دعاؤں کے اثار میں وہ سالار کے ہمراہ حویلی سے نکلتی چلی گئی۔ ان دونوں نے یہاں سے اسلام آباد جانا تھا کیونکہ وہ ان کے گاؤں سے قدرے قریب تھا۔ پھر اسلام آباد کے ایئرپورٹ میں ان کی فلائٹ تھی جو لاہور جانی تھی۔ سالار کو گورنمنٹ کی جانب سے وہاں بھی بنگلہ، گاڑی اور 5 ملازم فراہم کیے گئے تھے، مگر سالار اپنی ایک گاڑی اور 4 گاڑیوں سمیت 12 گارڈز بھی ساتھ لے جا رہا تھا۔ سارا سفر خاموشی سے ہی کٹا تھا۔ سالار اپنے موبائل میں گم رہا تھا اور سحر شیشے سے باہر دیکھنے میں۔ وہ بہت حیران تھی کہ آج تک جس شخص کو وہ لالا کہتی آئی ہے اب اچانک سے رشتہ کیسے بدل چکا تھا۔ اسلام آباد پہنچ کر ان دونوں نے ایک اچھے سے ہوٹل میں کھانا کھایا اور پھر وہ جہاز میں سوار ہوئے۔ انہیں اسلام آباد سے لاہور اور پھر لاہور سے اپنے گھر پہنچنے تک 5 گھنٹے لگے تھے۔ وہ وقت گھر پہنچتے تب رات کے 1 بج چکے تھے۔ انہوں نے گھر کا تفصیلی جائزہ نہیں لیا تھا، مگر جتنا سحر نے گھر کو دیکھا اسے گھر بہت 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 پسند آیا تھا۔ اس نے باقی جائزہ صبح لینے کا ارادہ کیا کیونکہ وہ ابھی بہت تھک چکی تھی۔ وہ 2nd فلور پر آئے تو سالار ایک کمرے کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔
सहर को समझ नहीं आ रही थी कि वो किधर जाए। सलार के पास जाती तो यकीनन वो इसे बेइज्जत करके कमरे से निकाल देता, मगर फिर भी वो इसी के कमरे में आई थी क्योंकि दरवाजा अभी लॉक नहीं किया गया था। वो अंदर आई तो सलार बेड पर बैठा अपने बूट उतार रहा था। मैं किधर जाऊं? वो उंगलियां चटकती नजरें झुकाकर आहिस्ता आवाज में बोली तो सलार ने नजर उठाकर नफरत से इसे देखा। इस बकवास का मतलब क्या है? तुम्हें इतना भी नहीं पता कि मियाँ बीवी एक ही कमरे में रहते हैं? फिर चाहे इनमें नफरत है या मोहब्बत। इसने आखिरी लफ्ज कहा तो इसे आंखों में मन्नत का अक्स आया था। इसके इस कदर नफरत भरे सख्त अल्फाज सुनकर तो सहर का सांस ही सीने में अटक गया। अब एक करती तो क्या करती, इसके पास सोती तो जाने वो क्या करता, और ना सोती तो मुमकिन था कि फिर से गुस्सा हो जाता। मगर वो हिम्मत करती बेड तक आई क्योंकि सलार अब बेड से उठता सूटकेस में अपने कपड़े लेकर वॉशरूम की तरफ बढ़ गया था। वो जल्दी से बेड पर लेटी और कंबल को अच्छे से खुद पर फैलाकर आंखें सख्ती से बंद कर गई। हालांकि दिल कर रहा था वो नहाकर कपड़े बदले, मगर इसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि सलार शाह की नफरत भरी नजरें मजीद खुद पर बर्दाश्त करे। वो ये भी तो सोचता कि इन सब में इसकी कोई मर्जी नहीं थी, इसके साथ भी जबरदस्ती ही की गई थी। इसके रवैये को याद करते आंखें बंद आंखों से भी सहर के दो आंसू टूटकर तकिए में जज्ब हुए थे। इसे अपनी मोरे की बातें याद आई थी कि उन्होंने कहा था वो शुरू शुरू में अच्छा रवैया भी रखेगा, मगर कुछ वक्त बाद बेहतर हो जाएगा। सहर भी खुद को तसल्ली देती नींद की वादियों में गुम होती चली गई। सलार बाहर आया तो एक बेजार सी नजर इस पर डालता। वो भी अपनी तरफ आकर लेट गया था। सुबह के 5 बजे सलार शाह का लगाया अलार्म बजा तो इसकी नींद टूटी थी। इसने अलार्म बंद किया और फिर दोनों हाथ बालों में फेरते कुछ सोचने लगा। कुछ देर यूं ही आवाजारी से लेटे रहने के बाद वो कंबल खुद से हटाता बेड से उठ खड़ा हुआ। अभी वो वॉशरूम की तरफ बढ़ता कि इसकी नजर बेड पर सोए वजूद पर पड़ी। वो तो भूल ही चुका था कि सहर भी इसके साथ थी। इसे देखते ही सलार की आंखें सुर्ख होती कहर बरसाने लगी। यानी इसका सुकून बर्बाद करके कितने आराम से सोई हुई थी वो। सलार ने तेजी से कदम इसकी तरफ लिए कि करीब आकर झटके से कमल खींचकर इसे अलग किया। इस नाजुक से वजूद ने कसम से आकर आंखें खोली तो सामने सलार को गुस्से में खुद को घूरते पाकर वो खौफजदा होती फौरन से उठ बैठी। मगर जब नजर अपने वजूद पर गई तो इसका दिल के शर्म से डूब मरे। गले से कमीज ठीक करते इसने फौरन से बेड से दुपट्टा उठाकर अपने गिर्द लपेटा। तो क्या हुआ? वो इसे अभी भी खामोशी से खुद को घूरता महसूस करके आहिस्ता आवाज में बोली। सलार ने नफरत से इसके मासूम चेहरे को देखा था। इसे इस वक्त इस चेहरे के पीछे मक्कारी दिख रही थी। ये मेरा घर है, तुम यहाँ रहती हो तो तुम्हें मेरे कवानीन के हिसाब से रहना है, ना कि अपने इस आलसीपन के साथ। उठो, वजू करके नमाज अदा करो। आज तो मैंने उठा दिया, कल से तुम खुद इस वक्त उठ जाना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वो धमकी देता बोला तो खुद कमरे से निकलता चला गया। या अल्लाह, बच गई। वो अपने सीने पर हाथ रखती अपनी हथेली धड़कनों को संभालते कोशिश करती बोली थी। फिर इसका हुक्म याद आने पर जल्दी से उठती वॉशरूम में वजू करने गई। बात ये नहीं थी कि पहले कभी इसने नमाज नहीं पढ़ी थी, बस इसकी नींद वक्त पर नहीं खुलती थी। पहले मन्नत और इसके बाद नादिया शाह इसे सुबह नमाज के वक्त जगाती थी। वो नमाज अदा करके दोबारा सो गई थी। अलबत्ता सलार कपड़े बदलकर लॉन में एक्सरसाइज के लिए जा चुका था। इसने कल से फिर जॉब पर जाना था और दूसरी तरफ सबका आसरा रार था कि वो बिजनेस को भी देखे। तो इसलिए इसे आज बिजनेस की कुछ टिप्स लेने के लिए अपने एक दोस्त से मिलने जाना था। वो एक्सरसाइज करके कमरे में आया तो नागवारी से इसे फिर से सोते देखा। दिल तो किया था कि इसे उठा के स्विमिंग पूल पे फेंक आए कि मोहतरमा की सारी नींदें ही उड़ जाए, मगर अगर वो सर झटकता अपने कपड़े लिए वॉशरूम में गया और शावर लेकर बाहर आया था। बाल अच्छे से बनाकर इसने काफी सारा परफ्यूम खुद पर छिड़का और एक अचटती निगाह डालकर वो कमरे से निकलता चला गया था। आज सलार और शहर को हवेली से गए हुए 3 दिन हो चुके थे। नादिया शाह दिन में 5 बार तो जरूर शहर से बात करती थी। अभी तक तो इसने कोई शिकवा नहीं किया था कि सलार के मुतालिक, इसलिए नादिया बेगम कदरे मुतमईन थी। मगर रात से हानि की तबीयत बहुत खराब थी, वो संभलने में ही नहीं आ रही थी। अमान भी बहुत परेशान थे। सारी रात इन सब ने जाकर गुजारी थी। सुबह ही अमान ने डॉक्टर को कॉल करके इसकी हालत बताई तो उन्होंने कहा था आप आज ही आ जाए, शायद ऑपरेशन आज या कल ही हो जाए। अब सारी पैकिंग हो चुकी थी। पैकिंग से मुराद हानिया के कुछ कपड़े और जरूरत की दूसरी चीजें।
हानिया आने वाले वक्त का सोचकर ही डर रही थी कि अमान ने इसका दिल बहलाने को बहुत कोशिश की थी, मगर वो इसकी एक बात भी सुन नहीं रही थी। जब इससे मिलने मुराद शाह, सलमान शाह और आगा साईं आए तो इसे रोता देखकर इन तीनों ने इसे मोहब्बत से खामोश करवाया। मुराद शाह की खुशी तो इन दिनों देखने वाली थी। दादा बनने की खुशी में उन्होंने एक मरतबा फिर पूरे गांव में मिठाइयों और गरीबों में राशन भिजवाया था। सलमान शाह ने सलार को कॉल करके कहा था कि वो शहर को लेकर गांव आ जाए, सिर्फ एक दिन के लिए सही, मगर अपने भांजे को तो देख ले। जिस बार सलार ने कहा था वो मसरूफ है तो मुमकिन नहीं। नादिया बेगम ने शहर को भी बताया था कि आज हॉस्पिटल जा रहे हैं, हानिया का ऑपरेट भी हो सकता है आज, तो इसलिए बगैर कुछ कहे कॉल काट दी। वो भी भतीजे को देखने के लिए तड़प रही थी, मगर सलार की वजह से मजबूर थी। नादिया शाह का दिल जैसे कट कर रह गया था। इन्हें याद था कि वो कितनी खुश थी अमान और हानिया के बच्चे के लिए। इसने तो कहा था कि बच्चे को सबसे पहले गोद में वो लेगी, इसे सबसे पहले किसी को भी किस भी वही करेगी और इसका नाम भी वही रखेगी। मगर किस्मत की सितम जरफी कुछ यूं थी कि वो कुछ भी नहीं कर सकती थी। अमान, हानिया और नादिया बेगम ही फिलहाल अस्पताल जा रहे थे। अगर डॉक्टर आज ऑपरेट का कह देती तो नौशा भी सलमान शाह के साथ चली जाती। वो भी इस मौके पर अपने बेटा और बहू को ना पाकर दुखी थी, मगर सलार इनकी कॉल ही नहीं पिक कर रहा था। अगर सही ने इनसे कहा था कि वो हानिया के कुछ कपड़े गांव की जरूरतमंद औरतों की भिजवा दे, बदले में इन्हें हानिया के लिए दुआएं का कहा जाए। तो वो ऊपर हानिया के कमरे में चली आई ताकि इनके कुछ कपड़े निकाल कर मुलाजमा को दे सके। मिस्टर अमान शाह, आपकी वाइफ ऑपरेट के लिए बिल्कुल परफेक्ट हालत में है, तो हमें आज ही ऑपरेट करना चाहिए। आप जाकर इन्हें किसी तरह रिलैक्स और मेंटली ऑपरेट के लिए तैयार करें ताकि ड्यूरिंग ऑपरेशन इनको स्ट्रेस डिस्टर्ब नहीं करे। मैं डॉक्टर से बात करती हूँ। डॉक्टर ने हानिया को चेक करके अमान को अपने कैबिन में बुलाया था ताकि खुलकर इनसे बात कर पाए। इसकी बात पर अमान ने इस बात में सर हिलाया। डॉक्टर, प्रॉब्लम यह है हानिया बहुत खौफजदा है। मैं इन्हें काफी समझा चुका हूँ, मगर वो मेंटली स्ट्रेस है। अमान ने फिक्रमंदी से कहा। तो डॉक्टर इसकी परेशानी पर धीमा सा मुस्कुरा दी। इट्स ऑल राइट मिस्टर, आप परेशान मत हो। इस मौके पर हर लड़के की फीलिंग्स यही होती हैं। बहरहाल आपसे जितना हो सके इन्हें पुरसुकून करने की कोशिश करें, बाकी हम देख लेंगे। उन्होंने नरमी से इसे तसल्ली दी और वह सर हिलाता उठ खड़ा हुआ। वो कमरे में आया तो हानिया नादिया शाह का हाथ थामे लेटी थी, जबकि इसका वजूद ऑफ वाइट कंबल में छुपा था। चेहरा सूजा सूजा सा था और ममता के एहसास से चेहरे पर इस कदर गुलाबीपन थी कि अमान को वो बहुत प्यारी लगी। अगर नादिया बेगम कमरे में नहीं होती तो यकीनन वो कोई गुस्ताखी कर गुजरता। अमान, क्या कहा डॉक्टर ने आपसे? इसे कमरे में दाखिल होते देखकर वो फौरन बेचैनी से बोली। तो अमान अजियत से होंठ भीज गया। इसके बस में होता तो वो आनिया की सारी तकलीफें खुद पर झेल लेता, मगर ये मुमकिन नहीं था। कुछ ही देर में ऑपरेट है आपका, मैं चाचू को बता दूं ताकि वो लोग भी आ जाएं। इसने कहते साथ ही सेल निकालकर सलमान शाह को कॉल की और इन सबको आने का कहकर वो भी हानिया के बेड के करीब रखे सोफे पर आ बैठा। ताई प्लीज अभी नहीं, मैं, मैं वो आंखों में आंसू लिए नादिया शाह को देखती हुई बोली थी। हानिया, आप यूं ही परेशान हो रही हैं बच्चे, आपकी मोरे और मैंने भी तो आप लोगों को पैदा किया है चंदा। यकीन करें आपको कुछ नहीं होगा। हाँ जरा सी तकलीफ होगी, मगर हम अपनी गुड़िया का बहुत ख्याल रखेंगे तो जख्म जल्दी से ठीक हो जाएगा और जल्द अब दोबारा पहले जैसी हो जाएंगी। नादिया शाह इनके बाल चेहरे से हटाते हुए मोहब्बत से इसे समझाती हुई बोली। तो इसने बच्चों की तरह नफी में सर हिलाया। अलबत्ता आंखों से आंसू लड़ियों की सूरत बहते तकिए में जज्ब हो रहे थे। हानिया, अमान के लहजे में वार्निंग थी, जबकि आंखों में भी सख्ती थी। हानिया ने इसकी तरफ देखा और फिर वो अचानक ही हाथों में चेहरा छुपाए फूट फूट कर रो दी। इसे यूं रोता देखकर नादिया बेगम और अमान परेशानी से उठ खड़े हुए। अमान इस पर झुका और जबरदस्ती इसके चेहरे पर हाथ हटाकर इन्हें मजबूत और नरमी अपने हाथों में थामा। आप अल्लाह पर यकीन रखें मेरी जान, आपको और हमारे बच्चे दोनों को कुछ नहीं होगा और ना ही आपको किसी किस्म की तकलीफ होगी। आप इस तरह रोएंगे तो सिवाय आपकी तबीयत खराब होने के और कुछ नहीं होना। अमान मोहब्बत से बोला था और हानिया ने आहिस्ता से आंखें खोली। मगर मान, इसे कुछ कहना चाहा। अगर मगर कुछ नहीं, बस अब आयतल कुर्सी पढ़ लें, कुछ ही देर में नर्स आ जाएगी आपको लेने। अमान ने इसके आंसू साफ करते हुए कहा। नर्स? नर्स क्यों? आप मेरे साथ जाएंगे? मैं अकेले बिल्कुल नहीं जाऊंगी, प्लीज मान। वो इसके कॉलर जकड़ती हुई बोली। तो अमान ने तकलीफ से आंखें बंद करके खोली। ठीक है, मैं आऊंगा आपके साथ, अब बिल्कुल नहीं रोना। चच्ची आने वाली हैं, वो भी आपको रोता देखकर परेशान हो जाएंगी। अमान ने आहिस्ते से इसके हाथों को अपने कॉलर से निकालकर कहा। तो इसने सर हिलाया। अमान जानता था इसका हानिया के साथ ऑपरेशन थिएटर में जाना अलाउ नहीं,
मगर इसने सिर्फ हानि का दिल रखने के लिए कहा था। फिर कुछ देर में ही मुराद, सलमान और नूर शाह भी हॉस्पिटल में पहुंच गए। सबने हानिया को बहुत प्यार किया और नूर और नादिया बेगम तो वहीं कुरान मजीद की तिलावत करने लगी और सूरतें पढ़कर हानिया को फूंक देती। सबको ही सलार के शहर की गैर मौजूदगी बहुत महसूस हो रही थी, मगर सलार की जिद के आगे सब बेबस थे। जब नर्स हानिया को लेने आई तो सभी इसके साथ ऑपरेशन थिएटर के दरवाजे तक गए थे। अमान ने हानिया की कमर में हाथ डालकर इसे सहारा दे रखा था। जैसे वो ग्लास डोर के सामने आए तो नर्स ने आगे होकर हानिया को अमान से थाम लिया। अमान ने रुख मोड़ लिया था क्योंकि वो जानता था अब वो फिर से हंगामा करेगी। इसने जैसे ही कदम आगे बढ़ाए, हानिया की दर्द भरी आवाज ने इसके कदम रोक लिए थे। मान! इसने नर्स को झटके से पुकारा। अमान जब्त खोता झटके से मुड़ा और इसके करीब आया। वो जवाब जो अब बगैर किसी के आसरे खड़ी थी, अचानक लड़खड़ाई। अमान ने तेजी से इसे थामा और बगैर किसी का ख्याल किसे सीने में बींच गया। इन दोनों को देखकर नूर की आंखें भर आई थी। अमान के सीने से लगती वो शिद्दत से रोने लगी तो नर्स फौरन डॉक्टर को बुलाने चली गई क्योंकि अब इसका करना ठीक नहीं था। प्लीज मेरी जान, मुझे इतना बेबस नहीं करो। अमान इसकी कमर को मजबूत साल में लेता। इसने मजीद खुद को अमान में छुपाया। मुझे कहीं नहीं जाना, वह रोती हुई बोली। अभी नूर या नादिया बेगम आगे बढ़ती कि नर्स के हमरा डॉक्टर भी तेजी से इन तक आए थे। उन्होंने आकर हानिया को अमान से अलग किया और इसे खुद से लगाया। अब सब रूम में जाए, मैं संभाल लूंगी इस छोटी सी डॉल को, डॉक्टर मोहब्बत से बोली। और वो वाकई इस वक्त हॉस्पिटल के लिए व्हाइट सूट में कोई छोटी सी गुलाबी गुड़िया ही लग रही थी। नहीं मान, कहीं नहीं जाएंगे। मान मेरे साथ अंदर आएंगे, है ना आप? वो मान की तरफ देखती बोली तो मान के इशारा करने पर डॉक्टर ने इसे मजीद मजबूती से थामते नर्स ने भी दूसरी तरफ से इसे सहारा दिया। आप परेशान मत हो, आपके मान से ज्यादा ख्याल रखूंगी आपका। अब चले अंदर आए, डॉक्टर ने मोहब्बत से कहा, मगर हानिया की सुई अमान पर ही अटकी थी। अभी वो कुछ कहती है, अचानक इसके पेट में दर्द की लहर उठी थी। वो पेट को जकड़कर जोरदार चीखी तो सब घर वाले ही परेशानी से इस तक आए थे। अब मजीद टाइम नहीं है हमारे पास, प्लीज अब इन्हें अंदर लेटा दें। डॉक्टर इसकी हालत के पेश नजर अमान से बोली तो उसने जल्दी से आगे बढ़ते से बाजुए में भरा और अंदर जाकर एक बेड पर इसे नरमी से लेटा दिया। इसकी चीखें अरूज पर थी तो सब डॉक्टर्स इस तक आए। अमान बाहर आया और एक बेंच पर सर हाथों में गिराए बैठ गया। बाकी सब भी इसके पास बैठे थे। अब बस सबके होंठों पर हानिया और बच्चे की खैरियत की दुआएं थी। वो भी घर पहुंचता और अपने घर में मौजूद कोई फाइल रीड कर रहा था। अलबत्ता सहर वॉशरूम में शावर ले रही थी। इस दिन बाद इन दोनों के दरमियान कोई बातचीत नहीं हुई, ना ही सलार ने से मुखातिब किया और ना ही सहर ने कोई जरूरत पेश आई थी। दोनों एक ही घर में, एक ही बंगले में अजनबियों की तरह रह रहे थे। सलार अब रोजाना ही पुलिस स्टेशन जाता था क्योंकि इसका एक खास केस चल रहा था। कुछ देर बाद सहर डार्क ब्राउन घुटनों तक शर्ट और हमरंग दुपट्टा, स्ट्रेट ट्राउजर पहने, कंधों पर महरून शॉल ओढ़े बाहर आई थी। इसकी नजर सलार पर पड़ी जो अपने काम में मगन था, और एक नजर इस पर डालना भी गवारा नहीं की थी। वो ड्रेसिंग के सामने आई और अपने बालों को ड्राई करने लगी। ड्रायर के शोर पर सलार ने नागवारी से चेहरा उठाकर इसकी तरफ देखा जो ब्राउन ड्रेस पहने बेपनाह धमक रही थी। बंद करो इसे और दफा हो जाओ यहाँ से, अभी के अभी। वो गुस्से से चिल्लाया तो सहर के हाथ कांपने लगे थे। इसने जल्दी से ड्रायर अपनी जगह पर रखा और बाहर की तरफ चली गई तो सलार भी दोबारा फाइल पढ़ने लगा था। जब अचानक इसके सेल रिंग हुआ तो सलार शाह ने सेल उठाकर बगैर नंबर देखे कान से लगाया। सलार बेटा मुबारक हो, हानिया ने एक प्यारी से बेटे को जन्म दिया है। सलमान शाह की आवाज पर वो फाइल एक तरफ रखता मुस्कुरा दिया। बहन की खुशी से बहुत अजीज थी, मगर वो जानता था काफी महीनों से वो अपने रिश्तों पर तवज्जो नहीं दे रहा था, जो कि सरासर ही गलत था। खैर मुबारक बाबा साईं, हानिया कैसी है? इससे फिक्रमंदी से पूछा था क्योंकि वो पहले भी इसे आगाह कर चुके थे कि हानिया बहुत रो रही है। अभी रूम में शिफ्ट कर रहे हैं, फिर हम सब मिलने जाएंगे। वैसे डॉक्टर ने कहा है वो ठीक है, उन्होंने संजीदगी से जवाब दिया था। जी बेहतर, वो बोला था। बेटा कोशिश करें आप शहर को लेकर आ जाए, केस तो आपकी जिंदगी भर चलते रहेंगे, मगर आपकी बहन है हानिया, इन्हें अच्छा लगेगा और इनकी खुशी में आप यहीं मौजूद हों। वो शहर भी मिलना चाहती होंगी इन सब से, और आप अपने भतीजे को भी देखना चाहती होगी। इनकी भी बहुत ख्वाहिशात थी बच्चे को लेकर। सलमान खान ने इन्हें समझाते हुए कहा तो सलार ने जी कहते कॉल कर दी। इसने पल को सोचा था कि शहर को साथ ले जाए या नहीं। वो फौरन ही फैसला करते हुए फाइल साइड टेबल पर रखता उठ खड़ा हुआ। बात लेकर इसे ब्लैक शलवार कमीज पहना और कंधों पर व्हाइट शॉल पहलाई, पाँव में ब्राउन पेशावरी चप्पल और कलाई में ब्लैक रोलेक्स की वॉच। खुद पर अच्छे से परफ्यूम छिड़क कर वो वॉलेट, गाड़ी और कीज लेता कमरे से निकलता चला गया।
लॉन्च से गुजरने लगा तो नजर सोफे पर बैठी सहर पर गई, जो सोफे पर पांव ऊपर किए घुटनों के गिर बाजू लपेट कर बैठी थी। इसके साथ कुछ फासले पर गांव से मुलाजमा शबनम बैठी थी, जो उम्र में इससे साल ही बड़ी होगी। यहाँ आकर अकेले होने की वजह से सहर काफी वक्त शबनम के साथ ही गुजारती थी। सलार चाहता तो हमेशा की तरह इसे बगैर बताए बाहर जा सकता था, मगर सिर्फ इसे जलाने की खातिर वो रुक गया और रुख इसकी तरफ किया। वो दोनों जो बातें कर रही थी इसे देखकर खामोश हो गई। शबनम तो इसे देखकर एहतराम में खड़ी हो चुकी थी, मगर और बेबी से मिलने हानिया मैं बेबी से मिलने हॉस्पिटल जा रहा हूँ, मुमकिन है रात हवेली में ही रुक जाऊं, तो इंतजार मत करना। वो तंजिया मुस्कुराहट चेहरे पर सजाकर कहता हुआ इसे अजियत पहुंचा रहा था। इसने आखिरी जुमला इसके दर्द तमस्कर से कहा था कि शहर को लगा इससे दहकती भट्टी में झोंक दिया हो। इसने खामोशी से बगैर एक भी लफ्ज के नजरें झुका ली तो सलार बस इसकी आंखों में उमड़ते आंसू देख पाया, जो इसे पुरसुकून करने के लिए काफी होने चाहिए थे। मगर जाने क्यों सलार को इन आंखों में आंसू अच्छे नहीं लगे थे। शायद इस वजह से कि इसकी आंखें मन्नत जैसी थी। लेकिन फिर भी वो सर झटकता बाहर की तरफ बढ़ गया तो शहर अचानक ही घुटनों में आए चेहरा दिए रो दी थी। क्या करती आखिर, किस कदर जब्त करती। वो जिंदगी में कभी एक दिन भी हवेली से बाहर अपनी मोरे के बगैर नहीं रही थी। वो बहुत कम उम्र थी तो कभी किसी ने इसकी शादी वगैरह का जिक्र भी नहीं किया था, इसलिए इसने दिमाग में ये चीज ही रहती थी कि इसने भी हमेशा अपनी हवेली में ही रहना है। मगर अब 4 दिन हो चुके थे वो इन सब से अलग हुए। सलार जो बचपन में बेशक इससे बहुत ज्यादा बात नहीं करता था, मगर वो जब भी इसे मुखातिब करता बेहद मोहब्बत से मुखातिब करता था। अगर इसने इसे हमेशा लाला कहा था तो सलार शाह भी इसे हमेशा बच्चा कहकर ही पुकारता था। अब अब वो इसे तुम कहकर पुकारने लगा था। इसका नाम तक लेना भी दूर की बात थी। इसके पास अपना सेल था, इसलिए इसकी भी हवेली वालों से बात हुई थी। नादिया बेगम ने इसे कहा था कि वो मुराद शाह को कहेंगी कि वो सलार से बात करें, ताकि सलार और सहर दोनों आकर एक दफा इन सब से मिलने और बच्चे से भी। इसलिए सहर को कुछ तसल्ली थी कि वो इसे भी लेकर जाएगा, मगर इसकी सब उम्मीदें ही टूट चुकी थी। वो समझ नहीं पा रही थी कि इन सब में इसका क्या कसूर था। मन्नत की डेथ हुई तो वो जानती थी कि इसने कैसे खुद को संभाला था। आज भी मन्नत को याद करती इसकी आंखें में आंसू बहने लगे थे। जब वो मन्नत की यादों से पीछा छुड़ाकर वापस अपनी जिंदगी में लौटी तो मुराशा ने इस पर एक बम गिराया था। वो अभी शादी का भी सोच नहीं सकती थी। वो अभी 19 बरस की भी नहीं हुई थी। और दूसरा बड़ा मसला था, शादी सलार से करनी थी, जिसे हमेशा इसने लाला ही कहा था। और सलार भी इसकी जान से अजीज बहन का शौहर था। इसने ये हरगिज नहीं सोचा था कि वो मन्नत को इसके हकूक दे चुका होगा, या वो मन्नत से मोहब्बत करता होगा, या इस किस्म का कुछ भी। इसे सिर्फ ये दुख था कि वो मन्नत के साथ गलत हो कर रही है। इसे किसी भी हाल में अपनी बहन के शौहर से शादी नहीं करनी थी। मगर वो तो चलो लड़की थी, और इसने भी हर मशर की लड़की की तरह अपने वालिदैन के आगे फैसले के आगे सर झुका दिया। मगर अब इसका कसूर क्या था। सलार शाह ने भी इकरार कर लिया। वो तो यही सोचती रही कि सलार फौरन ही मना कर देंगे और बात खत्म हो जाएगी, मगर सलार के इकरार से इसकी ये आखिरी उम्मीद भी टूट गई। फिर सलार की जिद पर इसके साथ रुखसत भी कर दिया गया। यहाँ कर बेशक सलार इसे बीवी होने की हैसियत से मोहब्बत और इज्जत मत देता, सिर्फ एक कजन अपना खून होने की वजह से ही थोड़ी इज्जत दे देता। वह जानती थी सलार समझता है कि इसने अपनी चाहत से इकरार किया था इसने शादी के लिए, मगर वो इसे समझा नहीं सकती थी कि वो मजबूर थी। वो कोई बहुत बाप की लाडली नहीं थी, या कह देती बाबा सही मैं ये शादी नहीं करूंगी, और वो मान लेते। अभी तक इसने किसी से भी कोई शिकवा नहीं किया था, मगर घर से किसी की कॉल आती तो वो कोशिश करती थी कि रोए नहीं, और सबके पूछने पर भी वो ये नहीं बताती थी कि सलार और इसका रिश्ता कैसा चल रहा है। वो अब तक चुप ही रही थी, मगर आज वो भी हॉस्पिटल जाना चाहती थी। इसके लाला का पहला बच्चा हुआ था और इसे इसके पास नहीं ले जाया गया था। कोई इस कदर बेरहम कैसे हो सकता है। इसे इसकी हवेली और हवेली वालों से अलग कर दिया था सलार शाह ने। क्या हो जाता जो वो चंद घंटों के लिए इसे हॉस्पिटल लेकर चला जाता, वो भी अपना भतीजा देख लेती, और जाते वक्त भी वो कह गया था कि मुमकिन है वो रात हवेली में ही ठहर जाए और इंतजार मत करना। किस चीज का इंतजार करती, इसकी नफरत भरी निगाहों का, या खुद से बेजार तासुरात का। हाँ, सलार शाह अपने कवानीन का बहुत पक्का था। ये तो जानता था कि मियाँ बीवी एक बिस्तर पर सोते हैं, वो वाकिफ थी, और वो ये भी सिर्फ इसे तकलीफ देने के लिए ही करता था। वो जानता था सहरी से खौफ खाती है और इसके करीब सांस भी नहीं ले पाती, सिर्फ और सिर्फ इसलिए सलार शाह ने इसे अपने बेड पर सोने का हुक्म दे रखा था। मगर वो ये नहीं जानता था कि बीवी और इसके हकूक होते हैं जो शोहर पूरे करता है। वो ये हरगिज
हरगिज नहीं चाहती थी कि सलार इसे इसके जायज हकूक दे। वो बिल्कुल भी तलबगार नहीं थी, मगर वो कम से कम इसे थोड़ी इज्जत, थोड़ी ही सही मगर मोहब्बत तो दे ही सकता था। ना जाने अब सलार शाह के असूल किधर खो गए थे। शबनम इसे रोते देखकर बौखलाकर इस तक आई थी जो बच्चों की तरफ फूट फूट कर रो रही थी। बीबी रोए मत, सब वक्त के साथ खुद को ठीक हो जाएंगे। वो भी इतने दिनों में देख चुकी थी सलार और इसके दरमियान दूरियां, और सलार की बेरुखी, इसलिए वो इसे तसल्ली देती हुई बोली, मुझे मेरा सेल ला दे शबनम, प्लीज। वो आंसू से तर सुर्ख चेहरा ऊपर करती हुई बोली तो शबनम बस बात में सर हिलाती ऊपर की तरफ भागी। इसने जल्दी से इसका सेल लाकर इसे थमाया और खुद किचन में चली गई तो सहर ने कपकपाते हाथों से अमान का नंबर डायल किया। कॉल रिसीव हुई तो अमान की आवाज सुनते ही इसके लबों से सिसकी निकली थी। अमान बहन की सिसकी पर तड़प उठा। सहर, लाला की जान, क्या हुआ आपको? आप रो रही हैं? क्या सलाह ने कुछ कहा मेरे बच्चे को? वो फिक्रमंदी से बोला था। बस नहीं चल रहा था कि फोन से निकलकर इसे खुद में भींच लेता। वो अकेले हॉस्पिटल चले गए लाला, मुझे नहीं लेकर गए। मैं मिलना चाहती थी आप सबसे और बेबी देखना चाहती थी। अब किस भी तो करना था मुझे। वो रोती ही बोली तो गुस्से से अमान की गर्दन और बाजुओं की रगें तन उठी। आप आंसू साफ करें और फौरन जाकर तैयार हो, मैं अभी अपनी गुड़िया को लेने आ रहा हूँ। और हाँ, अभी तक किसी से किस नहीं किया बेबी को, और वह नर्सरी में है। हाँ, कोई करेगा भी नहीं, ये मेरा वादा है अपनी शहर से। सबसे पहले इसे आप ही किस करेंगी, अमान ने मोहब्बत से कहा। तो इनने एक हाथ से आंखें रगड़ते हुए साफ की। मगर लाला, हानिया आपी, आपकी जरूरत होगी इन्हें, हम ड्राइवर को भेज देना। वो सोफे से उठती हुई बोली तो अम्मा ने इनकार कर दिया था और वो खुद ही आएगा। सहर अब सब कुछ पूरी तैयारी में करने में लगी थी। सलार हॉस्पिटल पहुंचे तो इसे यह खबर मिली थी कि अमान सहर को लेने जा चुका है। सलमान शाह और नूर शाह तो इससे नाराजगी का इजहार करते हुए बात ही नहीं कर रहे थे। अलबत्ता मुराद और नादिया शाह ने भी सलाम के अलावा इससे कोई बात नहीं की थी, मगर इसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। इसे फिलहाल इंतहाई गुस्सा था कि सर ने अमान को कॉल क्यों की। इसमें इतनी हिम्मत भी तो कैसे आई। रूम में पेशेंट के लिए एक डबल बेड था और इसके साथ बेबी के लिए एक कॉट रखी थी। अमान ने रूम वीआईपी बुक करवाया था तो वो आम कमरों की निस्बत काफी कुशादा था। 3 सोफे और एक टेबल भी मौजूद था। इसके अलावा एक कबर्ड और मैट्रेस भी रखा था। नादिया और नूरशाह एक सोफे पर तनहा बैठी थी। इस तरह मुराद और सलमान शाह भी साथ बैठे थे, जबकि सलार अलग सोफे पर बैठा बज़ाहिर मोबाइल यूज कर रहा था, अपना जैसा गुस्सा कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। कुछ ही देर बाद एक नर्स और 2 लड़के स्ट्रेचर रूम में लिए जिस पर हानिया लेटी थी। इसे होश आ चुका था इसलिए आंखें खुली थी, मगर चेहरे पर तकलीफ भरे तासुरात वाज़ह थे। सालार ने तेजी से आगे बढ़ते हुए इसे नरमी और एहतियात से बाहों में भरते बेड पर मुंतकिल किया तो वह स्ट्रेचर वापस ले गए थे। सालार ने इसकी पेशानी चूमी और इसके करीब चेयर घसीट कर बैठ गया। सब बड़े भी इसके पास है और इसे प्यार दिया। मुराद शाह ने मुलाजमीन से पूरे अस्पताल में मिठाई बिटवा दी थी। नूर शाह ने इसे बहुत प्यार किया था, मगर वो तकलीफ की वजह से खामोश थी। इसकी नजरें किसी को ढूंढ रही थी जो सबने ही पहचान चुके थे। अमान शहर को लेने गए हैं, आपके लाला को तो अपनी जिम्मेदारी। नूर बेगम ने इसकी मुश्किल आसान करने की खातिर से आगाह किया, मगर वो सब जब आगे बताने लगी तो नादिया बेगम ने इन्हें इशारे से मना कर दिया। वो नहीं चाहती थी कि हानिया परेशान हो जाए। हानिया ने बात सुनकर रास्ते से सर हिलाया और आंखें सलार की तरफ कर गई। दर्द तो नहीं हो रहा कहीं? सलार के सवाल पर इसके होंठ बीचे नफी में सर हिलाया। वो बोलने की हिम्मत भी नहीं कर पा रही थी। सलमान, हम निकले अब हवेली के लिए बच्चा। रात हवेली ही आएगा तो देख लेंगे, इस वक्त वहां मेहमानों को भी तो देखना है। मुराद शाह ने उठते हुए कहा तो सलमान शाह भी उठ खड़े हुए। फिर दोनों हानिया को प्यार देते हुए वहां से चले गए। नर्स ने आकर हानिया को ताकत के लिए एक ड्रिप लगाई तो वो तकलीफ से रोने लगी थी। फिर इन तीनों ने इसे चुप करवाया तो वो मुश्किल ही खामोश हुई थी। बेशक खून काफी बह गया था, मगर वो बहुत प्यारी लग रही थी। आज तो चेहरा पहले से भी ज्यादा चमक रहा था और हाथ सूजे हुए थे, और जिस्म का भी यही हाल था। वो प्रेगनेंसी से पहले भी निस्बत भरी भरी लग रही थी, शायद स्वेलिंग की वजह से। वो बच्चा देखना चाह रही थी, मगर डॉक्टर ने कहा था मजीद 2 घंटे से नर्सरी में रखा जाएगा। सलार कुछ देर मजीद बैठा और फिर बाद में आने का कहकर हवेली के लिए निकल गया। ओके गाइस, आज के एपिसोड के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा और हमें फीडबैक लाजमी दीजिएगा। फी अमानिल्लाह।